Today I'm going to revise chapter Making of National Movement 1870 to 1947. This chapter is from history and this week you are having test of this chapter. In this week you have to learn till moderates and extremists. तो आपका जो टेस्ट है टिल moderates and extremists रहेगा, not the whole chapter because so many topics are given in this chapter. It's not possible to learn in the learn for single test. आपको सिर्फ अभी moderates and extremists तक learn करना है. So today I'm going to revise all. First of all, so you have read that Indians were not happy with the British as there was British rule in India, and people such as peasants, soldiers, weavers, workers, Nawabs, they were not happy with the British. All had to face lots of problems. India was economically, politically, socially exploited by the British. So, poor condition of Indians under the British. Indians were treated as slaves by the British. So first of all तो हम कहेंगे कि ऐसे कुछ acts भी, some of the acts passed by British also made Indians to turn against the British. For example, ये जैसे हम कहते हैं इस लेसन में आप पढ़ते हो Arms Act. Arms Act. This act was passed by British in 1878. 1878 में ब्रिटिश ने एक्ट पास किया नोन एज आर्म्स एक्ट. बाय दिस एक्ट, अब इस एक्ट से इंडियंस क्यों नाराज हो गए? बिकॉज बाय दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पोजेस आर्म्स, टू कीप आर्म्स विद देम. इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस जो थे वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते थे, whereas Europeans they were allowed to possess or to keep arms with them. British were allowed to keep arms with them. On the other hand, by this act, Indians were not allowed to keep arms with them. So कहीं ना कहीं arms act जो था ये inequality लेके आया. So Indians were against this. Why they were not allowed to keep arms if Europeans were allowed? तो एक तो ये. नेक्स्ट हम कहेंगे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, सेम ईयर. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878 बाय द ब्रिटिश. वर्नैकुलर का मीनिंग होता है कॉमन लैंग्वेज. कॉमन लैंग्वेज. So this act was passed in the same year in 1878 by the British. अब common language ब्रिटिश को तो आती ही नहीं थी. इंडिया में कितनी सारी कॉमन लैंग्वेजेस थी, तो ब्रिटिश को वो लैंग्वेजेस नहीं आती. तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने उन न्यूज़पेपर्स की जो भी न्यूज़पेपर कॉमन लैंग्वेजेस में थे ना, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जितने भी न्यूज़पेपर थे, ब्रिटिश ने उन पर नजर रखी. एंड newspapers those who were in vernacular languages, उनके एडिटर्स को, पब्लिशर्स को कहा गया that they would not write anything in the newspapers against the British. और न्यूज़पेपर्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता था that spoil the image of colonial government. So newspapers were not allowed to write anything that spoil the image of colonial government. So these were the two acts, Arms Act, Vernacular Press Act. दोनों का ईयर बच्चे सेम है. आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडियन न्यूज़पेपर्स ऐसा कुछ भी उनमें नहीं लिखा जाएगा दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट. अगर ऐसा कुछ लिखा जाता दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, देन press was seized and machinery was confiscated by the British. तो next अब ब्रिटिश ने इल्बिट बिल पास किया. इल्बिट बिल, and this bill was passed in 1883. So you have to learn the years also.
एल्बर्ट बिल, कहीं ना कहीं ये बिल जो था ना, दैट ब्रॉट इक्वालिटी अमंग इंडियंस एंड यूरोपियंस, कहीं ना कहीं ये पहले इक्वालिटी लेके आया, बिकॉज बाय दिस बिल, अब ये जो बिल था ना, दैट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ, दिस बिल प्रोवाइडेड for the trial of Indians and Europeans by the Indian judges, and this was not tolerated by the British. तो ये बात ब्रिटिश से टॉलरेट नहीं हो रही थी कि वो इंडियन जजेस की कोर्ट में क्यों जाएं, बिकॉज दे ऑलवेज कंसिडर्ड इंडियंस इनफीरियर एंड कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर। तो ये बिल कहीं ना कहीं क्वालिटी लाया। This bill provided for the trial of Indians and Europeans by Indian judges. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो थे वो इस बिल के अगेंस्ट थे, एंड दे डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ दिस बिल, एंड गवर्नमेंट हैड विथड्रॉ दिस बिल, गवर्नमेंट ने इस बिल को विथड्रॉ भी कर दिया। When government withdrew this bill, this showed the racial attitude of the colonial government. तो कहीं ना कहीं इससे ना कॉलोनियल गवर्नमेंट का ये लगा कि कहीं ना कहीं उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया है कि कैसे इंडियन जजेस की कोर्ट में ब्रिटिश क्यों नहीं जाएंगे। तो इट मींस गवर्नमेंट ने इस बिल को, जब ये बिल जो पास किया था ये तो लेके आया इक्वालिटी, तो ब्रिटिश ने कहा अपनी गवर्नमेंट को, प्रेशराइज किया टू विथड्रॉ दिस बिल, तो गवर्नमेंट ने उसे विथड्रॉ कर भी दिया। तो कहीं ना कहीं ये उनका रेशियल एटीट्यूड शो कर रहा था ब्रिटिश का। तो ये तीनों हम कहेंगे कि ये जो तीनों एक्ट थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म्स एक्ट, देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दोनों ही 1878 के हैं, देन एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल को जब विथड्रॉ किया, जब पास किया वो तो इक्वालिटी लाया, जब विथड्रॉ किया तो दैट शोड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स इंडियंस। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, इससे ये शो हुआ। नेक्स्ट, तो अब आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। In 1885, Indian National Congress was formed, and it was formed by Indian National Congress. It was formed by A.O. Hume. He was British official. He was the founder of Indian National Congress. It was formed in 1885. 1885 में Indian National Congress बन गई। तो beginning में it had 72 delegates. Only 72 delegates were there in its beginning. And first session, listen again, 1885, Indian National Congress was formed. It was formed by A.O. Hume, and in its beginning there were only 72 delegates. सिर्फ 72 delegates थे। अब first session of the Congress was held at Bombay in 1885. 1885 में इसका first session जो था ना, that was held at Bombay. अब इसके जो अर्ली लीडर्स थे वो थे दादा भाई नारोजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तायब जी, ये सब इसके अर्ली लीडर्स थे। दीज वर द अर्ली लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लिसन अगेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में बनी? 1885। किसने बनाई? A.O. Hume was British official, and first session with 72 delegates से बनी। First session of the Congress was held at Bombay in 1885, and its early leaders, जो मैंने अभी नाम बोले, have to learn the name of these leaders: दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ये सारे इसके अर्ली, आप कह सकते हो कि अर्ली लीडर्स, रमेश चंद्र, सुब्रमण्य अय्यर, these were the early leaders of the Congress. अब फर्स्ट जो 20 years थे ना कांग्रेस के, इन दैट years कांग्रेस जो थी दैट वाज मॉडरेट। फर्स्ट 20 years में कांग्रेस जो थी दैट वाज मॉडरेट थे। बाद में ये एक्सट्रीमिस्ट भी इसमें आए। फर्स्ट 20 years जो कांग्रेस के थे ना, दैट वाज मॉडरेट।
and it demanded greater voice for Indians in government and in administration. Legislative councils में भी इसने कहा कि representation of Indians की बढ़ा दो, तो साथ में इसने कहा कि हाई पोजीशन शुड बी गिवन टू इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड उन दिनों ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ करते थे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और वो होते थे सिर्फ लंदन में। तो मॉडरेट्स ने लंदन में होने के कारण इंडियंस वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, तो इसलिए इंडियंस उनको अपेयर नहीं हो पाते थे उस एग्जामिनेशन में। तो मॉडरेट्स ने ये डिमांड रखी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है ना वो सिर्फ लंदन में नहीं होने चाहिए, वो इंडिया में भी कंडक्ट करवाने चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज नॉट जस्ट इन लंदन। उन्होंने कहा सिर्फ लंदन में ही नहीं करवाओ, उन्हें इंडिया में भी करवाओ ताकि इंडियंस भी उसमें अपेयर हो सके। तो ये वाली डिमांड्स उनकी थी। साथ में इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट जॉब्स जो थी ना वो सिर्फ वाइट्स को दी जाती थी, तो ब्रिटिश हमेशा इंडियंस को हाई पोजीशंस नहीं देते थे, हमेशा ये ब्रिटिश अपने ही लोगों को, वाइट पीपल को हाई जॉब्स देते थे, इंडियंस को ऐसा कोई भी वो हाई सैलरीज या हाई जॉब्स नहीं देते थे। साथ में मॉडरेट्स ने एक और डिमांड रखी टू रिपील द आर्म्स एक्ट, कि इस एक्ट को हटा दो। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हाई पोजीशंस दो, और साथ में इन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की बढ़ा दो, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का नंबर इम्प्रूव करो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो सिर्फ लंदन में होता है टू बी हेल्ड इन इंडिया आल्सो, सो दैट इंडियंस कुड आल्सो अपियर फॉर द सेम। साथ में उन्होंने कहा कि रिपील द विच एक्ट, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो आपने पास किया हुआ है इसे हटा दो। तो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट लीडर्स जो थे ना वो लोगों में अवेयरनेस लेके आना चाहते थे। अब स्लोली एंड स्लोली ये मॉडरेट्स जो थे दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश, इनको ब्रिटिश पे पूरा विश्वास था। ये सिर्फ डिमांड रखते थे कि हमें, दे डिमांडेड ओनली रिफॉर्म्स, ये सिर्फ रिफॉर्म्स मांगते थे ब्रिटिश से, और दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश। दे बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। तो जो इसके बाद जो आए लीडर्स वो थे एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल्स। मॉडरेट्स के बाद आए रेडिकल्स, रेडिकल्स को ही हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट थे, ये नो फेथ ऑन ब्रिटिश, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज, नॉट स्वराज, had no faith on British, believed in violence, violence में बिलीव करते थे। तो मेन थे लाल बाल पाल, ये रेडिकल लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दीज वर द रेडिकल लीडर्स। मॉडरेट्स के नाम मैंने बिगिनिंग में ही बोले थे, WC बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे नाम मैंने पहले मॉडरेट्स के बोले थे। अब आगे रेडिकल्स। तो फर्स्ट 20 इयर्स जो कांग्रेस के थे देवर ऑफ मॉडरेट्स, वो सिर्फ हर चीज में रिफॉर्म्स मांग रहे थे, उन्होंने कभी भी ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांगी। लेटर ऑन कांग्रेस में स्ट्रिक्ट लीडर्स आ गए, अब उनको कहा जाता था रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट। They had no faith on British. They demanded पूर्ण स्वराज, इन्होंने कहा हमें तो आज़ादी चाहिए। They believed in violence. They did not believe in non-violence. They believed in violence. ये लोग वायलेंस में बिलीव करते थे, और साथ में इनके मेन जो लीडर्स मैंने बोला लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन किसका दिया हुआ है? बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इस तरह के ये लीडर्स थे रेडिकल्स,
You have to learn the name of moderate leaders and radical leaders. Differentiate भी आ जाए तो आपने कहना है इनको ब्रिटिश पे विश्वास था. They had no faith on British. They believed in non-violence. They believed in violence. ये petitions, धरनास, इसमें विश्वास करते थे. They believed in bloodshed. ब्लडशेड में विश्वास करते थे. फिर हम कहेंगे इन्होंने सिर्फ स्वराज मांगा, इन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा. फिर हम इनके लीडर्स के नाम बताएंगे. WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी. डिपेंड अपॉन योर विश, आप किन के नाम बताना चाहते हो. देन यहाँ पे आप कहोगे लाल बाल पाल. यू कैन राइट लाल बाल पाल, बट यू हैव टू राइट इन फुल फॉर्म लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल. हु सेड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. बाल गंगाधर तिलक. आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा. किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक. तो इस वजह से दोनों में बहुत फर्क था. मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये भी कांग्रेस के लीडर्स थे, ये भी कांग्रेस के लीडर्स थे. तो अब उधर से ब्रिटिश ने क्या किया, इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया. पार्टीशन ऑफ बंगाल. दिस वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन. 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड दिस वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन. कहा जाता है डेविलिश पॉलिसी ऑफ कर्जन. अब ब्रिटिश ने क्या झूठ बोला और क्यों किया, दोनों में बहुत फर्क था. ब्रिटिश ने कहा कि बंगाल जो है ना, जब पार्टीशन किया ना, तो ब्रिटिश ने कहा कि बंगाल जो है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्रोविंस एंड इट इज नॉट इजी टू रूल ओवर अ बिगेस्ट प्रोविंस. तो इसीलिए हम उसको बांट रहे हैं, 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं ताकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना इजी हो जाए. तो ब्रिटिश ने ये वाला झूठ बोला. बट रियलिटी क्या थी इसके पीछे, क्यों बंगाल वाज पार्टीशन्ड, क्यों ब्रिटिश ने इसको डिवाइड किया. ब्रिटिश सेड दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड बंगाल बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट प्रोविंस एंड इट्स नॉट इजी टू रूल ओवर सच अ बिगेस्ट प्रोविंस. टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इजी वी आर गोइंग टू डिवाइड बंगाल. ये तो उन्होंने ऐसे बोल दिया. बट रियल मोटिव बिहाइंड दिस वाज दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड Hindus and Muslims on the basis of religion. And in those days क्या था कि बंगाल में ना नेशनलिज्म की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी. ब्रिटिश वांटेड टू curtail the feelings of nationalism that were spreading in Bengal in those days. तो मेन मोटिव जो था ना behind this partition, that was different. जो वो बोल रहे थे उससे बहुत फर्क था. बोल क्या रहे थे कि it is the richest Bengal. British said that Bengal is the richest biggest province and it's not easy to rule over such a biggest province. So to make the administrative work easy, we are going to divide it. But real motive was to divide Hindus and Muslims on the basis of religion. And on the other hand, British wanted to curb the feelings of nationalism which were spreading in Bengal in those days. तो ये वो चाहते थे. तो अब हुआ क्या इस पार्टीशन से, ब्रिटिश ने पार्टीशन कर दिया. लॉर्ड कर्जन ने ये पार्टीशन किया. ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए ड्यू टू दिस पार्टीशन. मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इस पार्टीशन की फेवर में थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने उन एरियाज में जहाँ पे मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, बंगाल वाली साइड, इन एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, तो ब्रिटिश ने उनको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी थी. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो थे ना, दे वर इन द फेवर ऑफ दिस पार्टीशन, वेयर एज हिंदूज वर अगेंस्ट दिस पार्टीशन. हिंदू सिख वो इस पार्टीशन के अगेंस्ट थे. तो देयर वर स्ट्राइक्स इन होल ऑफ इंडिया अगेंस्ट दिस पार्टीशन. पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक्स हुई ड्यू टू दिस पार्टीशन. लोगों ने प्रोटेस्ट किए. पीपल बर्ड ब्रिटिश गुड्स इन कीप. तो सब कुछ जो पार्टीशन के टाइम जो स्ट्राइक्स में होता है वो सब कुछ. लिकर शॉप्स वर पिक्टेड अप. स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. स्वदेशी में कहा गया यूज इंडियन गुड्स, बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स. तो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल. स्वदेशी का मतलब है यूज इंडियन गुड्स, प्रमोट इंडियन गुड्स, नॉट ब्रिटिश, बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स.
So Swadeshi movement was also launched during the partition of Bengal. अब 1906 में वैसे भी मुस्लिम लीग बन गई थी. 1906 Muslim League was formed that fought for the rights of Muslims only. क्योंकि कांग्रेस हिंदू महासभा जो थी ना वो हिंदुओं की कमेटी थी, तो मुस्लिम्स को लगता था कि उनकी अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनके लिए लड़े, तो मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग सेटअप की इन 1906. मुस्लिम लीग वाज सेटअप. अब पार्टीशन भी चल रहा है, वो भी डेज चल रहे हैं. देयर वाज वायलेंस इन ऑल ओवर द कंट्री, तो लोग भड़क रहे थे. पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पार्टीशन, तो जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो ब्रिटिश को ये पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा. ब्रिटिश हैड टू कैंसिल दिस पार्टीशन, और उन्होंने 1911 में ये पार्टीशन को कैंसिल कर दिया. अब बंगाल को जो ब्रिटिश 2 पार्ट्स में बांट रहे थे ना, उन्होंने इस पार्टीशन को कैंसिल किया. इन विच ईयर? इन 1911 ब्रिटिश ने इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया. अब 1907 में ना एक और बात हुई. 1907 में ये दोनों ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इनमें झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर. इन 1907 को कहते हैं सूरत स्प्लिट. सूरत स्प्लिट, तो इसका क्या मीनिंग है सूरत स्प्लिट? सूरत स्प्लिट मीन्स सूरत में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में आपस में झगड़ा हो गया दोनों में. तो ड्यू टू दिस कांग्रेस में स्प्लिट हो गया. कांग्रेस 2 पार्ट्स में बट गई, सेपरेट हो गए ये दोनों ग्रुप्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. दोनों में झगड़ा हो गया. कब हुआ? कौन से सेशन में? सूरत का सेशन, कांग्रेस का जो सूरत में सेशन हुआ, दैट वाज इन 1907. उस सेशन में दोनों ग्रुप्स में स्प्लिट, झगड़ा हुआ एंड बट गए. तो इस वजह से अभी तक आप इतना करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 सेम ईयर्स है. यू शुड नो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ. इसमें कॉमन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन पे नजर रखी थी ब्रिटिश ने कि वो कहीं उनके अगेंस्ट तो नहीं लिख रहे. इसमें उन्होंने इंडियंस को आर्म यूज करने से, अपने पास आर्म रखने से मना किया था. इसमें उन्होंने इल्बिट बिल तो इक्वालिटी लाया था, उन्होंने पास किया, बट इसको विड्रॉ करके उन्होंने यूरोपियन के कहने से इसको विड्रॉ किया. तो उनका रेशियल एटीट्यूड लोगों के सामने आया ब्रिटिश का. नेक्स्ट, फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? A.O. ह्यूम. अब बिगनिंग में कितने इसके डेलीगेट्स थे, मेंबर्स थे? 72. बाद में बढ़ते चले गए. फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे. कौन से ईयर में हुआ? 1885. तो कांग्रेस के लीडर्स के नेम मैंने अभी बताए थे. फिर हमने कहा कि कांग्रेस फर्स्ट 20 इयर्स मॉडरेट्स थी, तो मॉडरेट थी. तो मॉडरेट की मैंने कुछ डिमांड्स बताई हैं. क्या क्या वो चाहते थे कि इंडियन को हायर जॉब्स दो, इंडियन के नंबर्स बढ़ा दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, तो उनको पावर, इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में उनका नंबर बढ़ाओ, ये सब. फिर उन्होंने कहा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि लंदन में होता है उसको इंडिया में भी कंडक्ट करवाओ ताकि इंडियंस कुड अपेयर फॉर दैट. फिर उन्होंने कहा टू रिपील द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को जो है इसे कैंसिल करो. तो ये सारी डिमांड्स मॉडरेट्स की थी. मॉडरेट्स जो थे दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश एंड दे वांटेड ओनली रिफॉर्म्स. वो सिर्फ रिफॉर्म्स मांगते थे, फ्रीडम नहीं मांगी इन्होंने. बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. फिर इनके लीडर्स के आपको नाम पता होने चाहिए, वही जो आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए किए. तो नेक्स्ट आपके आ जाएंगे रेडिकल्स. रेडिकल्स डिफरेंट थे, इनको कोई ब्रिटिश के ऊपर फेथ नहीं था, टोटली डिफरेंट थे. बिलीव्ड इन वायलेंस, और साथ में ये पूर्ण स्वराज मांगते थे. तो ये ब्लडशेड में बिलीव करते थे. वो लोग पटिशंस, धरना में विश्वास करते थे. तो इनके लीडर्स थे लाल बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कहा था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. अब इधर पार्टीशन हो गया बंगाल का 1905 में. किसने किया? लॉर्ड कर्जन. कहा कुछ और किया क्यों, ये मैंने अभी बताया आपको. देन 1906 में मुस्लिम्स ने अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहा गया मुस्लिम लीग. ये सिर्फ मुस्लिम्स के राइट्स के लिए लगती थी. देन 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ सूरत में.
सूरत में कांग्रेस 2 पार्ट्स में बट गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो दोनों में डिवीजन हो गई। अब 1911 में जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ब्रिटिश को इस पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ा। ब्रिटिश हैड टू टेक बैक दिस डिसीजन, उन्हें जिसको कि हम कहते हैं डेविलिश पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो ब्रिटिश को इस पार्टीशन को कैंसिल